لیکن ابھی جو بات کی نا آخر میں عمر بھائی نے، میرا اب سوال اس میں سے ہے کہ طارق بھائی حضرت مسیح موعود نے فساد فی الارض کے بارے میں کچھ کہا ہوا ہے؟ ہاں فساد فی الارض کا مسئلہ کہا ہوا ہے انہوں نے، مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن یہ اس کو ڈسکس کیا ہوا انہوں نے۔ گمن بھائی خاموش ہیں تب سے۔ گمان بھائی نے تو فساد فی الارض کے اوپر فتویٰ قتل دے کے آپ کے سر میں گولیاں مارنے کی بات تو کر دی تھی۔ ہاں انہوں نے تو فیصلہ کر دیا تھا فتویٰ۔ لیکن وہ کوئی ریزن دیا تھا نا، تو وہ کہاں سے دیا تھا، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں۔ تو صفیہ باجی اس طرح تو اچھا جو وہ ریزن انہوں نے دیا ٹھیک تھا، ہے، اس طرح تو ہر بندے کے نزدیک دوسرا شخص جو ہے وہ فساد پھیلا رہا تو وہ ہر بندہ قتل کے فتوے دیتا رہا کہ گل مک گئی۔ ہاں بالکل۔ یعنی تو دیکھیں نا، مس یوز اسی طرح قرآن مجید کی آیات کو کیا جاتا ہے کہ اپنی مرضی سے آپ اس کو ایک مفہوم نکال کے کسی دوسرے پہ لگا دیں کہ یہ تمہارے متعلق ہی ہے، تو یہ تو پھر اس کا کیا کر سکتے ہیں، وہ ہر شخص کا اپنا سوچ ہے۔ وہ بات ٹھیک ہے طارق چوہان صاحب، لیکن ایک ڈائریکٹلی اپنی ہی ایک احمدی بہن کے بارے میں اس طرح سے کہنا کہ میں تم فساد فی الارض کر رہی ہو یہاں پہ ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے، اور میں تمہارے اوپر ایسے کر دوں گا، گولیاں مار دوں گا، فلاں کر دوں گا، تو یہ کوئی مطلب جس طرح سے اوپن آئز بھائی ہمیں شو کر نہیں وہ انہوں ان نے کو کہا احمدی بہن نہیں نہ سمجھتے، اسی لیے انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے دیکھیں انہوں نے بعد میں شاید کلیئر کر دیا ہوگا نا، بس ختم ہو گیا معاملہ، بار بار میرے خیال سے تو کہیں پہ نہیں کلیئر کیا، انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ کو انڈورس کیا تھا میرے خیال سے، جہاں تک مجھے پتا ہے۔ السلام علیکم۔ بھی کلیئر کر دیں۔ ہاں جی، السلام علیکم اپنے طور پہ بھائی، ہر چیز آپ بولی جا سن رہے رہے ہیں ہیں تو اوپنائز آپ بھائی؟ خود ہی سوال خود ہی منہ میاں اوپنائز مٹھو بھائی، بنی جا رہے ہو۔ جی 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 جو بھائی، بات میں نے کی ہے اس کو مجھ سے گمن پوچھ صاحب لو ایک نا، اس کی منٹ، گمن تشریح۔ صاحب ایک سننے چھوٹی سی دینا بات، گمن گمن صاحب کی صاحب بات۔ گمن صاحب ایک چھوٹی سی بات کر لینے دیں۔ اوپنائز بھائی، بات صرف اتنی ہے کہ یہ پلیز ٹاپک بدبودار اور بوسیدہ ہو چکا ہے، یہ جو باتیں ہیں نا، یہ باجی کو بیچ میں سے نکال دیں، روز یہ کہانیاں جو ہیں اس کو چھوڑ دیں، اب بہت اس کے اندر سے غلاظت تو نکل چکی ہے، اور مزید اس کو ایڈ نہ کریں کسی چیز کو بھی۔ چلیں اگر کوئی ٹھیک، گفتگو کرنی ہے تو وہ کریں۔ چلیں صحیح ہے، چلیں یار سر چھوڑیں، وہ جو انہوں نے اس وقت کہا تھا مجھے نہیں پتا اس کے ان بعد کیا کا ہوا، لیکن وہ دیکھیے وہ دے رہے ہیں باجی بھی اپنی، وہ بیٹھی کہہ ہوئی رہے ہیں، ہیں گمان خود ہی بھائی بھی سوال بیٹھے خود ہوئے ہی ہیں، گمان جواب۔ بھائی اگر کلیئر کر دیں گے تو بات ختم ہو جائے گی، ان کو کلیئر کرنے دیں گمان بھائی کو۔ مطلب یہ تو ظلم ہو جائے گا نا کہ ہم اپنے اسٹیٹمنٹس دیتے رہیں اور جب گمن بھائی کی باری آئے تو ہم کہیں کہ وہ اسٹیٹمنٹ چلیں اپنا ٹھیک ہے، نہ دیں۔ چلیں ٹھیک ہے یار، دے لیں آپ اسٹیٹمنٹ دے لیں، جی ٹھیک ہے۔ جی بات یہ ہے کہ میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دینے جا رہا، مطلب یہ ہے کہ خود سے بنانا، یہ کر دیا وہ کر دیا، فتویٰ دے دیا۔ میرا فتویٰ مانتے ہیں، میں مفتی ہوں، میں نے ایک بات، کوئی بھی انسان کسی جگہ سے کوئی چیز پڑھ کے یا کوئی چیز بتاتا ہے کہ یہ بات اس طرح ہوتی ہے، فساد الارض کرنے والے کی اگر نشانیاں ثابت ہو جائیں، جیسے منافق کی نشانیاں ثابت ہو جائیں، تو مطلب اس کو الرٹ تو کرنا پڑتا ہے نا کہ تم یہ بات کر رہی ہو۔ اس پر فتویٰ مجھے سمجھ نہیں آتی، ہر بات کو ایسے لیتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں علم کل ہے یا علم کل بننا چاہتے ہیں۔ علم کل کوئی بھی نہیں ہے، ہر بندہ اپنے حساب سے بات کرتا ہے۔ آپ بھی تو تشہید الاذہان سے وہ باتیں لے کے جو ان کا کنڈکٹ ہی اور ہے، اس کے آگے پیچھے سے کنیکٹ نہیں لینا تو باتوں کو الجھا رہے ہیں، اسی طرح ہر کوئی بندہ الجھا سکتا ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے ایسے کوئی نہیں بات کی کہ میں فتویٰ دیتا ہوں تو وہ جا کے قتل کر دو اس کو کوئی، یا قتل میں کر دوں گا، یا وہ باتوں میں بات جب بڑھ جاتی ہے نا تو ایسے دو بندے کھڑے بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں میں تمہیں مار چھوڑوں گا، میں تو اس سے کوئی مر جاتا بھی نہیں ہے، نہ کو مار دیتا ہے، نہ کو مار سکتا ہی ہے۔ پتہ نہیں آپ باتوں کو جب جتنا مرضی طول دیں گے اتنا ہی آپ مطلب کم علم ثابت ہوں گے۔ جو بھی چیزیں نشانی جس کی ثابت ہو جائے اس کو وہ تو کہنا تو پڑ جاتا ہے نا کہ مطلب یہ تم اس زمرے میں آ رہے ہو، تو اگر کہہ دیا تو اس میں حرج کیا ہو گیا جی؟ جو مجھے محسوس ہوا، دو بندوں کو جو آپس میں لڑائے، کسی کو جا کے کوئی بات کہے، کسی کو کوئی بات کہے، اور دو آپس میں لڑ پڑے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فساد الارض نہیں کہتے؟ آپ لوگوں کی پتہ نہیں عقل کہاں چلی جاتی ہے، ایسی ڈھونگی باتوں پہ بحث کرنی شروع کر دیتے ہیں، ایسے لفظوں کے اوپر الجھ جاتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں آپ ہی سارا کچھ جانتے ہیں، باقی دنیا کے تو ناک میں مرکی ڈال کے کھاتی ہے۔ بھائی ہر ایک بندے کا دماغ ہے، ہر بندہ روٹی منہ میں ڈال کے ہی کھاتا ہے۔
मैं इस वक्त बिजी हूँ थोड़ा, मतलब मुझे नहीं समझ आती कि मतलब बार बार आप मुझे छेड़ रहे थे, उनसे ले लो ये ले गुमन लो। भाई ये भाई सफियाबाजी मेरा कोई आपके ऐसा नज़दीक जो गुमन भाई आपके नज़दीक ये सफियाबाजी फसाद फिल अर्ज कर रही हैं? ये मुनाफिक करती हैं सिर्फ। देखें वही जिस ज़िमरे में जो भी आता है, जो भी जिस बात को जाता है, जहाँ जहाँ मुनासिब समझता है बंदा वहाँ बोल देता है। क्या करती हैं, कब करती हैं, कैसे करती हैं, वो उस वक्त जिस वक्त वो मालूम होता है वो कह देता है। इससे क्या मतलब है, मतलब आप क्या समझना आपके चाहते नज़दीक हैं? गुमन भाई नहीं आपके देखें, नज़दीक फसाद ये फिल अर्ज फसाद से फिल बहुत अर्ज बड़ी को बात है। कुरान नहीं, मजीद तो अब तो कोई फरमाता नहीं है कर रहे। अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल। देखें अब तो कोई नहीं कर रही, जब कर रही थी मैं कह दिया, जब नहीं कर रही नहीं कर रही। क्या मतलब नहीं, अब हुआ? वो मतलब आपकी स्टेटमेंट वो आप अपनी स्टेटमेंट वापस लेते हैं अभी? देखें एक बंदा जो है मुनाफिक किसे कहा जाता है, जो काम बात को माने और उसको उल्ट बयान करे, उसको कहते हैं मुनाफिक। जो माने ही ना, उस कैटेगरी से बाहर निकल जाए, उससे लड़ाई किस बात की? एक दायरे गुमन से बाहर भाई निकल जाए, आपने उससे उस तो वक्त लड़ाई ये हो सकती है। स्टेटमेंट इन पे दी थी, गुमन भाई आपने उस और वक्त ये उस इन पे वक्त स्टेटमेंट दी थी, उस वो वक्त तो ये उस वक्त कर रही इस थी, जुमरे में अभी आती नहीं थी, कर रही, तो उस अभी आप वक्त ये इस स्टेटमेंट वापस जुमरे ले में लेना। आती थी। बस मैं इससे ज्यादा जवाब नहीं दूंगा। अभी चलें स्टेटमेंट वापस चलें लेते हैं अभी गुमन के साहब, लिए। वो वापस ले लें आप, क्योंकि फसाद फिल अर्ज ये वाला तो इल्ज़ाम बहुत बड़ा है ना, इसकी तो सज़ा भी बड़ी भयानक है कुरान मजीद में। तो अरे आप गुमन अल्फाज साहब वापस ले लें। कुछ वापस लेने की जरूरत नहीं किसी को। भाई चंगेज खान तुमसे तो तो पूछ, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं गुमन साहब से, उनके अल्फाज हैं। मतलब मैं तो तारिक चौहान भाई, अच्छा नहीं है कि एक चौहान चीज़ भाई ख़त्म हो जाए। खुद ये को मन भाई से बात कर रहा हूँ। फसाद विल मेरे अर्ज का भाई फतवा हैं वो। देके ये कहा गया था कि मैं इनकी सर पे गोलियां मारूंगा, ये कहा गया था तारिक चौहान भाई। ओह, तो यार ये साहिल कालू ये अब उन्होंने प्रोपोगंडा छोड़ सजा दो। भी दे दी थी हर सर। ब्राड के ऊपर अच्छी ये प्रोपोगंडा लगता नहीं है, ये प्रोपोगंडा करना छोड़ दो। हर ब्राड के ऊपर एक ही बात, हर ब्राड के ऊपर एक ही बात। अब ये कोई घुमन ईसा साहब पिटा एक जवाब खुद ही लफ्ज दे देंगे यार, जंगेज वो खुद है दे देंगे, वो घुमन भाई नहीं। वो खुद बोल सकते नहीं हैं, वो नहीं, दे देंगे जवाब। हर चीज क्लियर हो गई। मुरब्बी साहब ने 3-3 घंटे लगाए हैं सफिया बाजी के ऊपर, फिर भी ये समझी नहीं कोई बात, और फिर आके नया ढोंग रचाना शुरू कर देती हैं अपने 2-3 गैर अहमदी भाइयों को लेके। अच्छा, और यानी आप सफिया तारिक बाजी को आप चौहान भाई ढोंगी कह रहे हैं? चेक कर रहे हैं तारिक चौहान भाई, तारिक और चौहान ये भाई उनको बड़ा मेंटालिटी चेक कर रहे हैं साबित करना शुरू कर कि देते हैं। मरब्बी साहब ने 3 घंटे लगाए हैं, समझी नहीं है, लिहाजा गुम्मन भाई की बात से ठीक है, ये फसाद फैला रही हैं और इनके सर पे गोलियां मारनी बनती हैं, क्योंकि ये समझी नहीं है तो मरब्बी साहब की बात। ये ये लगता तो मेंटालिटी चेक यही करें है। तारिक भाई। जो यही मर्जी कह कहते रहो, तुम अपनी सिस्टर को जो मर्जी कहते रहो, अपने मुंह से जो मर्जी कहते रहो, समझ आई? नहीं, हमारी तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर अहमदी हैं, भी हम हमारी तो बहनें मानते हैं, हैं, गैर अहमदी भी हमारी बहनें हैं, हमारी बहनें हैं हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। बहन है वो सारी बिल्कुल। बहनों का टिकटॉक की सारी बहनों का ठेका सिर्फ एडी ने लिया हुआ है। सब बहनों का ठेका एडी ने लिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हर भाई जो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहन हमारी आएगी बहनें। उसको हम सपोर्ट करेंगे, ये तो उनका हक है, जिसका दिल चाहता है वो आए, जो वो बयान करनी अब चाहती हैं एक वो उनका बात हक है। तारिक साहब, एक बात जब एक बात खत्म हो जाती है उसको बार बार कुरेदना, उसको बार बार वही बात करनी फजूल है। अच्छा चंगेज यार, चंगेज खान साहब, यानी बात घुमन साहब से हो रही है, आपको जरूर उनको डिफेंड, आपने वो खुद अपना नहीं कर सकते, वो बात उन्होंने की भी है। उमन साहब ने कह दिया है जी कि मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करूंगा, इसलिए साहिल कालू जहाँ भी बैठता है और बाजी सफिया मासूम बाजी मुनाफिक बाजी जहाँ अब भी फिर आप बैठती वही है, इनका तंजिया यही गुफ्तगू काम कर होता रहे हैं, है, वही वाली। यही काम होता है इनका बैठ के हाँ, कि वो साहिल कभी आप कालू उनको साहब मतलब ढोंगी कह रहे जो हैं, होता है ना कभी टीसी फसाद करना, ये होती है। मेरी बात सुने तारिक चौहान साहब, आपकी माशाल्लाह हर से सफ़ेद हो चुकी है, वक्त गुजारा है आपने दुनियादारी में, जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये बताएं कि अब टीसी करनी जो होती है ना, ये एक टीसी होती है, हर वक्त करनी है किसी की टीसी, और यहाँ पे बताना कि टीसी तुम कौन बड़ी कर रहा है मजलूम यार? हो। तो ये हर एक वक्त टीसी करते हैं और क्या करते हैं। नहीं नहीं, एक देखे ना, एक एक्चुअल फैक्ट है जो जब उन्होंने एक बयान किया। बात, एक फतवा, एक हर चीज बता दी, तो फिर उसी बात को कुरेदना कि उसने फलां ने तुम्हें ये कह दिया था, फलां ने तुम्हें गाली निकाल दी थी, अबे चंगेज फलां ने तुम्हारे तुम्हें ऐसे मुतालिक तो कह है दिया ही नहीं है वो बात, वो चंगेज भाई, घुमन साहब बैठे हुए वो चंगेज खुद भाई बात कर यार, रहे मैं हैं। 2 मिनट बाद से पीछे जाना है, फसाद की लड़ शुरू हो जाता है। हाँ अच्छा यार, बात ये है चंगेज भाई, बात ऐसी है, छोड़े इस चीज़ को। बाकी है कि मैंने सुना है, अब मैं अपनी केस लेके आया हूँ, लोगों ने केस ही करना है। मैंने सुना है कोई आप जाके किसी को कह रहे थे कि मैं कोई किसी ग्रुप में ऐड हूँ, ये हूँ वो हूँ, ये आप ही थे या कोई और चंगेज भाई थे? इस ग्रुप में ऐड हूँ। आपने कोई मेरे बारे में कोई बात की थी कि वो कोई एडी के ग्रुप में ऐड सुनाए कि मैंने कब की थी, सुनाए। नहीं की तो आप बैठा नहीं भाई, मैंने पूछा है पहले भाई आपसे, इसलिए तो मैंने पूछा है सिर्फ। बहुत सारी बातें बंदा कर देता है, कुछ बातें याद भी नहीं रहती।
चलो ठीक है, अगर आपने नहीं की तो फिर ठीक है, फिर नहीं नहीं, मैंने ये तो कहा ही नहीं कि मैंने की नहीं है, मैंने कहा अगर की है तो सुना दें। यार ये दो टोक अच्छा बात है, इसमें हंसने वाली कोई बात ही नहीं। भाई मैं छोड़ो परे, और फिर अगर सफिया, आप ये सफिया साहबा ये बैठी हैं, मैं इनके मुंह पे भी मुनाफिक कहता हूँ, पीछे भी कहता हूँ, आगे भी कहता हूँ, दाएं भी कहता हूँ, बाएं मुनाफिक भी की बात नहीं हो रही, मुनाफिक की बात नहीं हो रही। मुनाफिक तो यार हर दूसरा बंदा एक दूसरे को कह रहा होता है। मुनाफिक का मतलब भी पता है आपको? मुनाफिक का खबीस ये औरत भी मतलब है कहते हैं ये, कि मुनाफिक का मुनाफिक ये के अलावा मतलब है कि खबीस तारिक औरत भी साहब कहते को हैं। यहाँ बिल्कुल मैंने कहा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, अच्छा बिल्कुल छोड़ें, कहा। आप इधर पर्सनल ना हो, रिकॉर्डिंग अगर किसी के पास हो तो कोई भेज दे भाई, साहिल या किसी ये ने सुनी मुनाफिक हो का जिसको। मतलब होता है जो अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और हो। तो सफिया बाजी तो जो हैं वो बयान करती हैं, नहीं नहीं, वो उनके ऊपर ये अंदर से लफ्ज वो कुछ कैसे दिलों और आता का है, है? मेरी हाल बात सुने तारक चौहान तारक जान साहब, भाई, दिलों का अंदर हाल से जानते आप, हैं। अब अंदर से तारक चौहान साहब आप कुछ और है, बाहर से कुछ और है, तो फिर आपके मुतल्लिक भी ये कहा जा सकता है, तो हरी के मुतल्लिक कहा सकता है, तो सारे मुनाफिक ही क्योंकि हैं इकट्ठे हाँ हुए। हाँ, इसीलिए इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मुनाफिक को मुनाफिक कहे। अब मुझे मुनाफिक है, मुझे तो कोई दर्द नहीं, तकलीफ नहीं होगी कि तो बड़ी अजीब है, यानी आपको पता नहीं है कि जहन्नम के सबसे निचले तरीन दर्जे में होंगे मुनाफिक। आप कहेंगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, मैं तो जो मुनाफिक देखता हूँ उसको मुनाफिक कहता हूँ। हाँ तो ना ना तो कहें, क्योंकि मैंने देखा है ना, इनको मैंने देखा मुनाफिकत करते हुए। यानी कब जो उन्होंने कोई मेरी बात बात सुने, छुपाई है? एक मिनट तारक चौहान साहब, जिसकी दिल में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के कोई जगह नहीं है और उनको नीचे बैठ के गालियाँ पड़वाता है जो बंदा, वो मुनाफिक है। और एक शिया को मैं नीचे लिखूं कि शिया काफिर, और वो भाजी मुझे शिया काफिर कहने से अपनी बराड़ से भी मुझे ब्लॉक कर दे और मेरे कमेंट्स को भी ब्लॉक कर दे, और वो जो शिया ऊपर बैठा हो और वो जमात के मतलब कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर दे, तो बाजी उसको अप्रिशिएट करें माशाल्लाह। इसको मैं इस औरत ये को तो आपका मुनाफिक ना कहूँ पर्सनल तो, ग्रज आप और बता मेरी रहे हैं। मेरी एक सेकंड रुकें, मैं इनको फूलों के हार डालूं इनको? हाँ, ये पर्सनल ग्रज आप बता रहे हैं ना कि आपके कौन सी साथ ये पर्सनल हुआ। है? मेरे तो आपका लिए, पॉइंट ऑफ व्यू मेरे है लिए बस। एक सेकंड, हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की इज्जत मेरे लिए मेरे माँ बाप से भी ज्यादा बढ़ के। ओ भाई, हम भी उनकी इज्जत करते हैं, हमारे लिए भी ओ माँ हम बाप भी से उनकी ज्यादा है। इज्जत आप करते हैं जितनी मुझे आपका भी पता है, कोई तो बात वही ना, ढकी छुपी आपके नहीं। ख्याल में हमने आपसे सर्टिफिकेट लेना है इस चीज का? वो तो फिर हम तो मैं समझते हैं उम्मत में मैं कामिल सिर्फ तरीन शख्स मिर्जा मेरी गुलाम बात अहमद है। सुनने, मेरी हम तो बात इसको सुनने, बात को यकीन तारक रखते चौहान हैं। साहब, तारक चौहान आपसे साहब, सर्टिफिकेट लेंगे अब आप? नहीं तारक चौहान मेरे ख्याल साहब, में तो आप मेरे मिर्जा से साहब की तालीम सर्टिफिकेट को छोड़ नहीं, चुके हैं। मेरे से नहीं, मेरे मैं ख्याल में तो आप मिर्जा साहब की तालीम को छोड़ चुके हैं। मैं तारक आपको साहब, मुनाफिक कह रहा हूँ? तारक साहब मेरी बात सुने, मुनाफिक यही होता है ना कि जो दूसरे एक बंदा जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को यहाँ बैठ के गाली गलोच कर रहा हो और जमात के मतलब बुरा भला बोल रहा हो, उसकी वो अच्छा, सुन रही हो, ये और मुनाफिक अपने की ये एक तारीफ कहाँ सेकंड लिखी यार, हुई है? तारक कहाँ चौहान एक लिखी हुई है मिनट ये तारीफ? यार, एक अपनी तरफ सेकंड से तारक तारीफ चौहान, बनाई हुई है। और तारक चौहान एक मिनट सब्र तो करें, एक ये मिनट आप कहाँ मुझे, लिखा है कि मुनाफिक यार की ये आप बोल लो, तारीफ है? बोल लो। हाँ, जब आप मुनाफिक की तारीफ ही आपको पता नहीं, आप खुद ही कोई चीज़ बयान कर रहे हैं तो कहते जब आदमी ये कर रहा हो तो वो आप उसको मुनाफिक का टप्पा लगा देंगे। तो ये तो आपने खुद ही तारीफ कर दी ना। आप बताएं कि जी फलां जगह ये लिखा हुआ है, उसके मुताबिक कोई शख्स कर रहा है। मुनाफिक होता ही वो शख्स है, कुरान मजीद में जो उसकी तारीफ है कि वो अपने दिल में कुछ और सोच रहे होते हैं, ऊपर ऊपर से कुछ और होते हैं। अब सफ़िया बाजी तो जो दिल में उनके है वो सारा बयान करती हैं, कभी उन्होंने कुछ नहीं छुपाया। तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना है ही बिल्कुल गलत। ऐसे शख्स को मुनाफिक नहीं कहा जा सकता, कुछ और कहें आप। और मुनाफिक कहने से अच्छा पहले मुझे बता सोचना दे चाहिए तारक चौहान साहब, कि ये ऐसी कितनी बड़ी बात है। ऐसी फसाद फिल अर्ज, ऐसा मुनाफिक के मर्द, इतने मेरी बड़े बात बड़े एक अल्फाज सेकंड हैं तारक जो आप साहब, बड़े एक आराम से मिनट, निकाल देते हैं मुंह से। मेरी बात तो सुन लें। ऐसा मर्द या ऐसी औरत को क्या कहेंगे कि जिसके दिल में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के कोई जगह ना हो और वो दावे ये करता हो कि मैं उनके मानने वाला हूँ, ये मुझे आपका उनसे बड़ा ख्याल है ना। प्यार है। आप अब जैसे क्या मुझे कह रहे हैं, मैं तो मानता ही नहीं हूँ भाई। मैं तो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को आप नहीं, लोगों से भी 1000 गुना तारक ज्यादा चौहान मानता हूँ। साहब, तारक चौहान साहब, आप किसी तरफ खड़े भी होते हैं, एक मिनट सब्र तो कर लें। मैंने आपसे एक सवाल करना है, फिर मुझे बताएं कि उसको क्या नाम देंगे। मुनाफिक नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे उसको? नहीं, जो आप बात बयान कर रहे हैं ना वही गलत है कि कोई शख्स ये कर रहा हो वो कर रहा हो। ये तो आपका अपना ओपिनियन है ना, ये कोई फैक्ट तो नहीं है। ये अफेक्ट सिर्फ है ना, आपकी अपनी आप दिल सोच मेरी है। की बात बात सुने, कर रहे मेरी हैं बात तारिक भाई, सुने। ये दिल की बात कर रहे हैं, ये भी पूछ लें कि दिल अफेक्ट चीरे हुए हैं।
हाँ नहीं दिल चीरे नहीं हुए, नजर आती है जो चीज वो नजर आती है ना दिल में। तो मैं, आप कलमा पढ़ती हैं, आप ला इला, अब यहाँ साहिल कालू बैठा था, ये मेरे प्यारे भाई ने कहा मैं कलमा नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा का पढ़ता हूँ, वो कह रहा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, साहिल कालू ऊपर बैठ के कह रहा है। अब वो इस चीज का उसको, उसके पास उसने दिल चीरा हुआ, ये तो उमर वही भाई का, काम तो आप भी कर रहे हैं ना। उमर भाई का आप कह उसने रहे दिल नहीं चीरा हुआ है कि नहीं वो जो सफिया कलमा पढ़ रहा बाजी है किसका हजरत कलमा मसीह पढ़ मौद रहा को नहीं है। एक मानती, मिनट यार तारक चौहान मेरे साहब, आप मतलब भी फजूल आप यही बहस कह ना रहे हैं। फजूल बहस ना करें। फजूल बहस आप कर रहे हैं भाई, मैं फजूल नहीं कर काम का रहा। मुनाफिक मुनाफिक ना कहें, वो हाँ कोई मैं, मुनाफिक नहीं है। जो वो मुनाफिक है उसको बड़ी मुनाफिक, जैसे दलेरी आप से जो वो बात समझती हैं वो उसको बयान आप करती हैं। आप ये आप मुनाफिक का काम नहीं आपको होता, मेरी मुनाफिक बात तो सुने, बुज़दिल और डरपोक होता है, वो तो बयान मुनाफिक करती वो हैं अपनी होता बात, है उनको कोई डर नहीं किसी से। किसी किसी ये को किसी से अल्फाज आप कोई डर वापस नहीं। नहीं, ये गलत है, आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं मुनाफिक किसी के लिए। औरत है, मैं इनको कहता हूँ और कहता रहूंगा, इसमें कुछ दो राय हाँ नहीं तो है। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि आप फिर झूठ बोल रहे हैं, हाँ और आप लानत मेरे अल्लाह अल बिल्कुल, काज़िबीन आपके आप मुतल्लिक़ बिल्कुल, अल्लाह ताला ने फरमाया। लानतुल्लाह अलल काज़िमीन, हाँ बेशक 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 ठीक है। बेशक। जी अस्सलाम वालेकुम ओपन भाई। हर बंदा समझता है मैं ही ज़्यादा अक्लमंद हूँ, मुझे ही पता है सारी बातों का, बाकी तो पता नहीं है, ऐसे ही बस आ गए हैं। तो भाई हर बंदे को इल्म है कि वो क्या करता है, वो क्या समझता है, क्या किसी के ओपिनियन है। भाई जो किसी को सामने सामने नज़र आ रहा हो उसको भी देख कर, आखिर सूरज निकला है तो कहें को अब रात है, आंखें बंद कर लें, अंधेरा है, तो ये कैसे हो सकता है भाई? जो बात सामने है वो सामने है, और हर बात पर इशू उठाना, मैंने वजाहत कर दी है कि जिस वक्त जिस तरह की बात हो उस वक्त उसका अलाउड होता है, ना कि हर वक्त। जिस वक्त वो मुनाफिकत के ज़ुमरे में आते थे, जिस वक्त आती थी उस वक्त फतवा सुना दिया। और मैं फतवा सुनाने का मतलब ये होता है कि आप भी तो कह देते हैं ना ये काम करे तो वो मुसलमान है। अगर कोई कलमा ही नहीं पढ़ता तो कहोगे ये मुसलमान है? भाई उसी को कहोगे ना मुसलमान जो कलमा पढ़ेगा, जो अहकाम इस्लाम पर अमल करेगा। तो इसी तरह ही वही बात भी उस तरह ही है कि जो खुद कलमा ना पढ़े और कहे कि मैं मुसलमान हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? डबल उसको मुनाफिक कहा जाता है ना। जो एक बात को मान भी रहा हो तो उसका अमल उसके खिलाफ हो। तो बातें पता नहीं ऐसे ही करी जा रहे होते हैं, बहस करनी है, बस हर एक से अटकना है, जिस मर्जी बरात पे चले जाओ, बस दूसरे के बात का उल्ट मतलब जवाब देने की कोशिश करनी है कि इसने ये बात की है तो इसका उल्ट क्या बन सकता है। ये नहीं सोचना को बात का मतलब क्या है, मजमून कहाँ चल रहा है, इस दफ़ा मतलब क्या मफहूम है। बस दो लफ्ज़ों को ले के ये जी हो गया वो हो गया, उसने ये कर दिया, फलां जगह पे ये लिख दिया। वो भाई उसके आगे पीछे भी तो होता है ना। अभी सर कालू कह रहा था कि वो जो उधर लाहौरियों को पता क्या लिखा है। भाई उनका दोनों का आपस में मुकाबला भी तो फिर वजाहत करो ना। मुकाबला जब हो रहा था तो वो क्या लिखते थे तो ये क्या लिखते थे। वो मुकाबला सारा बड़ा है लिखाई में, उधर जाके देख लें। दोनों के मुकाबले की बात करते हैं ना, फिर दोनों एक दूसरे को लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो करते होंगे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? ऐसे बात को जारी रखना सच्चा भी कहते, कोई इल्म की बात है नहीं है। इल्म किसे कहा जाता है? जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर आए ना। तो मौजूदा सूरत हाल में मुसलमान जो अमल कर रहे हैं ये वाकई मुसलमानियत के ज़िम्रे में आता है कि किसी को इबादत से रोक दो, किसी के मस्जिद में मिटा दो? ये कहाँ आता है भाई? इस पर बहस करो। लो जी फलां ने ये लफ्ज़ लिख दिया, देखो जी ये लफ्ज़ आपने मैंने उस पर बना के 24 घंटे बहस करते रहना, कहाँ का असूल है भाई? अच्छा घुमन साहब, आपने अभी कहा है कि ये जो आपने बात की थी, जो फतवा आप कह रहे हैं दिया था आपने, वो जैसा उस वक्त था वैसा आपने दे दिया, यानी वो आपका एक पर्सनल ओपिनियन था, आप ऐसा समझे और आपने कहा। इसका मतलब है आप दूसरों सबको हक देते हैं कि वो आपके किसी अमल के ऊपर वो भी फिर फतवा आपके ऊपर दे दे, तो वो भी फिर हक बजाने पे होगा ना, जिस तरह आप खुद को हक बजाने पे समझ रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। कहने से क्या हो जाता है? कहने से कुछ भी नहीं होता। सारी दुनिया हमें काफिर कहती है, हम काफिर बन गए हैं? कोई नहीं, कैसे बन सकते हैं? क्योंकि ये अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। किसी को कहना कुछ भी कहना उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसके साबित अदालत में भी जाके आप कह दो इस बंदे ने कत्ल किया है, अदालत सबूत मांगेगी ना, सबूत के बाद जाके उसका ऊपर फैसला करेगी, उसके कहने पे उसको लेके फांसी पे चढ़ा देगी। ऐसे तो ठीक नहीं है। होगा ना, हो सकता है।
और जी वो तो फैसले हो भी सकते हैं, लेकिन जो फैसले अल्लाह ने जन्नत दोज़ख के और किसी के मुसलमान होने के या दिए हुए हैं, वो अल्लाह के तुम्हें बंदों के तो तुम्हें लगाए ही नहीं है अल्लाह ने। वो इसका साबित मतलब है करिए। आप सफिया बाजी को हुआ हक देते हैं कि वो आपको कहें कि आप फसाद फिल अर्ज कर रहे हैं और आपके सर में जो गोलियां मारनी चाहिए। जी जी कह दे, उससे कहने हाँ से मुझे चलो कोई ठीक फर्क नहीं पड़ता, जब ठीक है। जब मर्जी कहें। ठीक है। पता नहीं उन्होंने इससे चौहान भी साहब ज्यादा बढ़ के लफ्ज मेरे ऊपर कहे हों, तो फिर आपको क्या फर्क है, मुझे क्या फर्क पड़ा है? हर कोई एक दूसरे नहीं पे कह कहे सकता है, मैं आपके गुमान ऊपर भाई, कह अब ये सकता हूँ, गलत आप मेरे बात आप ऊपर कह कह रहे सकते हैं। मैंने एक दफ़ा भी क्या आपको मसला नहीं, है देखा। आपको? जी सफिया मैंने सिस्टर ठहर गए, राशिद जी भाई, जी राशिद भाई आप भी थोड़ा ठहरे। अभी मुझे आपने ये बहुत अच्छी बात, जी जी आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि जो फैसले और इख्तियार अल्लाह के पास है ना, वो अल्लाह के पास ही होने चाहिए। वो मुझे या आपको या ये जो दूसरे हैं उन्हें भी नहीं लेने चाहिए हाथ में, और फिर हमें भी नहीं लेने चाहिए। जो मुनाफिकीन थे उनके बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए बताया जाता था। जब वो नहीं रहे, उसके बाद पूरी हुल्फ ये खिलाफत राशिदा में आप देखें, वो ये टर्म यूज़ ही नहीं हुई। सही। तो ये जो चीज़ें ना कि वो मुनाफिक है, वो जो भी बात है वो जाने खुदा जाने, जजा सज़ा खुदा ने देनी है, ना आपने देनी है ना मैंने देनी है। और ये जो फसाद फिल अर्ज़ की बात है ना, ये राशिद साहब बड़ा सीरियस मसला होता है। इसमें ये चीज़ है कि फसाद फिल अर्ज़ की सज़ा देनी किसने है? अली ने देनी है, राशिद साहब ने देनी है, चौहान साहब ने देनी है, या सफ़िया बहन ने देनी है? इख्तियार किसी के पास नहीं है, ये गवर्नमेंट का इख्तियार है, उसके पास ही रहने दें। फसाद फिल अर्ज़ हो रही है, आप जाएं उस पे FIR दें, वो इतनी बात है। ये उसके बाद जो दूसरी बातें हैं, ये अल्लाह और मीन उस टाइम आखिरत की बातें हैं, तो वो उधर ही रहते हैं, तो इस पे छोड़ेंगे बातें, तो बात ये लंबी मैं हो भी गई तो है। यही कह रहा, मैंने भी सारी तमहीद का एक ही मकसद बयान किया है कि बात को जितना मर्जी अलझाए रखो, सालों बदी उसके ऊपर बहस करते रहो, उसका मकसद बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि वो हमारा काम ही नहीं है। बात यह है कि जो भी लिटरेचर में जो पढ़ा जाता है, जो लिखा जाता है, जिसके ऊपर किसी के ऊपर मुसलमान होने का, ना मुसलमान होने का वो ओपिनियन है, वो बताया जाता है। बस बताया जाना और उसके ऊपर फतवा होना, ये दो अलग-अलग बातें हैं। मतलब मैं मिसाल पहले भी दी है, यही भी दिया है कि बंदा बिल्कुल कलमा भी नहीं पढ़ता, अल्लाह को भी नहीं मानता, तो वो कहे कि मैं मुसलमान हूँ, तो सामने सामने नज़र आ रहा है, उसको कह सकते हैं आपके पास आप मुनाफिकत कर रहे हो। मतलब आप तो अल्लाह को भी नहीं मान रहे, अल्लाह के खिलाफ बातें कर रहे हो, अल्लाह को गालियाँ निकाल रहे हो, तो आप कह रहे हो मैं मुसलमान हूँ। तो ये बात होती है, असल में बात उसको सुनानी होती है कि ये इस टर्म में आपको ये कहा जाता है। बस उसके ऊपर फिर अगर कोई मुकदमा करता है कि इसने ये किया है, तो वो फिर हज़ारों लोग अंदर पड़े हैं ना, जो करते हैं नबियों की तौहीन करते हैं, वो पड़े नहीं हैं अंदर। मतलब बात ये है कि जो असल में सामने वाकई खुल के आ जाता है, उस पर केस भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन एक बात सुनाना और उसके ऊपर बहस करना, ये कहाँ की बात है भाई? ये तो 24 घंटे जब मौलवी खुतबा देता है, अपने चढ़ता है, वो भी यही बातें बताता है कि ये काम करो, ये काम करने वाला जो होता है वो अच्छा नहीं होता, ये काम करने वाला वो होता है। तो उससे तो सिर्फ अवाम को समझाने की खातिर सब कुछ चल रहा होता है ना, तो अवाम को जी समझाने राशिद के भाई, खातिर जी कहने से जी ऊपर फतवा लग जाता है। वो हाँ जी मुफ्ती ठीक कौन है, कौन फतवा लगा रहा है, ये जी सब सोचना है जी। जी जी समझ गया। और ये देखिए सफ़िया बहन, बात सीधी होगी, राशिद साहब बोल रहे हैं कि वो उनके ख्याल में आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं या नहीं हैं वो नहीं जानते, उनके ख्याल में जजाकल्ला। ऐसा है, तो चलो जी इधर अली बात भाई, खत्म। इस अली पे भाई, अब जी मैं जी एक सिर्फ बता जी दूं, जी क्योंकि बोलिए। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मैं इनके लिए कुछ बोलती थी। इन्होंने जो है मुझे 2-3 दिन मुसलसल ये कहा अपना एड्रेस भेजो, मैं आता हूँ तुम्हें अभी मारता हूँ, और बहुत सारे लोगों के सामने भी कहा। तो इनको कहें कि इस तो वो तरह की ना समझी की स्टेटमेंट बात है ना, हाँ तो आइंदा ना दें ये जी ना जी मैं स्टेटमेंट। उसकी हाँ जी जी मैं जी उसका ना समझी ओपिनियन की दे बात देता है। हूँ। बात असल हाँ में जी ये होती है, दो जी बंदे जब बात सामने सामने कर रहे हों, तो वो उसमें आ भी जाता है, कोई कुछ कह देता है कि तुम क्या कर सकते हो, तो वो आगे से गुस्से में कह देता है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, मैं तुम्हें, तो वही बात भाई मौके के जी, मुनासबत से मैं बात वही तो कर रहा हूँ कि मौके भाईजान के मुनासबत की बात होती है। भाईजान कुमन साहब मेरी गल सुनो, मेरे अजीज कुमन साहब, मेरे बड़े भाई, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੱਝ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੀਣ ਵਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਮੱਝ ਹੀ ਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ
ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਮਿਸਮਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਮਿਸਮਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਮੇ ਮਿਟਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਅੱਜ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਆਮਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਖਰਾਸ਼ ਵਾਕਿਆ ਕਿੰਨਾ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅਗਰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ 6 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਝੜਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਮੁਜੱਸਮ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ, 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਖਾਓ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਣੋ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਦਾਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਿਓ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਭਾਈ ਕਾਫਰ ਕੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ। ਉਹ ਲੋਕ